Yes, students. Revision. Okay. Fine. Now first question. Give the heading. Right expression. Okay. Right. A part. Product of x and y added to 6. This is the question. Write expressions product of x and y added to 6. Students, write down in the chat box your result. Your result, write down in the chat box. Okay. Yes, Jyotin. Very good. Well done. So, product of x and y. Product means multiplication operation. Fine. Product means multiplication operation. So, write down under the bracket x multiplied by y added to 6 plus 6 like this. So, you can write xy plus 6. Both are correct. Yes, Devang, what happened? मैम यहाँ पे ना बहुत ज्यादा जैसे कड़कड़ हो रही है माइक की वजह से शायद. Okay. Check the question and solve your sum. Okay. Wait. Check question from blackboard and solve side by side. Now, voice is clear? Students, write down in the chat box. Now, write down next question. मैं पूछ रही हूँ, voice is clear? उसका रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, वैसे मेरी आवाज नहीं आ रही उनको. मैं जो पूछ रही हूँ वो लिख रहे हैं यहाँ पे. Now, write down next question, B part. Yes. Multiply 6 by m and result is subtracted from 12. This is the question. Okay. Multiply 6 by m, 6 with m, कुछ भी लिखा हो सकता है. Okay. Multiply 6 by m and result is subtracted from 12. Yes. No. Yeah. Sit. Stand up, Sarang. This is the first step. The step number 1 is multiply 6 by m. It means 6 multiplied by m is equal to 6m. और एक और suggestion दे रही हूँ मैं आपको, स्टेप में सम को करके आना माइनस वाले को, बिकॉज अगर स्टेप में करोगे ना तो लास्ट स्टेप गलत भी हुआ ना तो इस स्टेप का 1 मार्क आपको मिल जाएगा. कुछ बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे 6m माइनस 12 या 12 माइनस 6m, ये फिर आपको 0 मार्क्स मिलेगा अगर गलत हुआ तो. ये अगर गलत हो गया तो क्या मिलेगा? 0. बट अगर स्टेप्स में करोगे सम को, स्टेप 1 आपका करेक्ट हो गया तो यू विल गेट 1 मार्क्स. तो दैट्स वाई सोच के करना भी, डायरेक्ट लिखे कि स्टेप में ही कर लें सम को. फाइन. And this is step number 1. Multiply 6 by m. Fine. And result means ये वाला, result means इसको बोल रहे हैं वो result. Result is, इधर हो जाओ थोड़ा सा. And result is
subtracted from 12 it means रिजल्ट को 12 में से माइनस करो. So you will write 12 minus 6m. This is, तो अगर आप डायरेक्ट लिख के आ जाओगे 6m minus 12 तो आपको क्या मिलेगा? 0, क्योंकि वो तो आपने बिल्कुल सोल्यूशन ही दे दिया. बेटर है सॉल्व योर सम इन स्टेप. तो स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई 6 by m, इट मीन्स 6 multiplied by m. बेटा 6th क्लास हो गई है, अभी तक आपको नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम. सो मैनी स्टूडेंट्स yes, now write down next. Gorish, Adgun, your result is incorrect. 6m minus 12 q. The question is multiply 6 by m and result. इसको वो रिजल्ट बोल रहा है, इस वाले को ये रिजल्ट है उसका. And result is subtracted from 12. It means 12 में से आपने इसको माइनस करना है. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इफ द सम इज बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन रीड अगेन एंड अगेन. 2 to 3 टाइम्स उसको अच्छे से रीड करो भी वो क्या कह रहा है, तब लिखो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम ही माइनस में आती है. फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से माइनस करना. फ्रॉम 12 में से माइनस करो, 12 आगे आएगा. 12 minus 6 है. राइट डाउन नेक्स्ट. Draw the rough diagram of kite. Next question is draw a rough diagram of kite and also write down lines of symmetry. Also write down number of lines of symmetry. Now, tell me, according to you, which diagram is correct diagram for kite? Yes, second. What about first one? Very good, very good, very good. Yes. What about this? This is rhombus. This is rhombus. This is kite and this is rhombus. If the question is based on kite, then draw your diagram like this. This is not a kite. This is kite. Okay? So the question is draw a rough diagram of kite and also write the lines of symmetry. It means you will draw the diagram of kite. You will draw line of symmetry here. You have to draw line of symmetry in this figure. Otherwise, no marks is given to you. ये मत सोचना भी काइट बना देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे. नो, काइट के मार्क्स नहीं मिलने. मार्क्स किसके मिलने हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के. ओके, सो इन काइट वी हैव, अंगदीप, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री इन काइट? 4. Students, write down in the chat box how many lines of symmetry in a kite. 1. Only 1 vertical. हाँ, अगर आप काइट को हॉरिजॉन्टल शेप में बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हो. ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने काइट को ऐसे ही बनाना है. ओके, ऐसे भी बन सकता है ये.
ऐसे बनाना है, ऐसे बना लो। ओके, तब इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेटा, वेरी मच कंपल्सरी टू पुट दीज टू एरोज। फाइन, अगर आपने साइड ऐसा बनाना है तो कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, हॉरिजॉन्टल। अगर आपने ऐसे ही इसको शेप में रखना है तो इसमें क्या लिखोगे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद लिखना भी है, is compulsory, writing is also compulsory. Write down one line of symmetry, one line of symmetry. Horizontal vertical बेटा तब लिखना अगर वो then you will say this is vertical line of symmetry. अगर डायरेक्टली यही लिखे write down the number, number means in counting, no need to mention horizontal or vertical. Yes बेटा, डॉटेड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। नाउ राइट डाउन draw the rough diagram of trapezium. Draw the rough diagram of trapezium. Tell me. Now tell me what about trapezium? Trapezium लिखा है इसमें। Yes students, what about this trapezium? Comment draw. What about trapezium? हाँ, yes, very good. Well done. Well done. Very good. This is trapezium. But the question is given trapezium. Now, this is trapezium. Okay. This is also trapezium. This is trapezium. This is also trapezium. And this also. ये भी trapezium है. All are trapezium. 1, 2, 3. No fixed shape. Trapezium means only these two sides are parallel. इनका हमें कुछ नहीं पता. इनका हमें ये स्लांटिंग में ये स्ट्रेट भी हो सकता है या ये स्लांटिंग में ये स्ट्रेट भी हो सकता है. तो इफ द हेडिंग इज ट्रेपीजियम देन व्हाट विल यू राइट, टेल मी, क्या लिखोगे, टेल मी. अगर पेपर में आया ट्रेपीजियम तो सम को कैसे करोगे, ये पहले भी मैंने समझाया हुआ है एक बार, तब भी मैंने एक्सप्लेनेशन से ही समझाया था, ये डायग्राम से. वेरी गुड गौरेश. You will write no line of symmetry. हमें पता ही नहीं शेप कैसी होगी. मैंने आपको क्या बोला है, ट्रेपीजियम इस शेप में भी होते हैं. These two sides are parallel, ये फिक्स है. This condition is fixed. These two sides are parallel. इनका हमें कुछ नहीं पता. ये दोनों स्लांटिंग भी हो सकती हैं, वन स्लांटिंग वन स्टैंडिंग भी हो सकती है, इधर से स्टैंडिंग और ये स्लांटिंग. तो हमें पता ही नहीं, डायग्राम ट्रेपीजियम लिख दिया उन्होंने, कौन सा ट्रेपीजियम हमें क्या पता. देन यू विल राइट जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ इफ द हेडिंग इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, नहीं ट्राइंगल मेंशन होगा आपको, कौन सा ट्राइंगल. हाँ, अगर ट्राइंगल आ गया तो खुद क्लासीफाई खुद कर दो,
इसको भी क्लासिफाई कर दो, चाहे एक साइड लिखो ओनली एनी ट्रेपीजियम, एक साइड लिखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, क्लासिफिकेशन कर दो ना। अगर उन्होंने आपसे पूछा है तो आपको पता है 2 टाइप्स होती हैं, एक तो कोई भी ट्रेपीजियम हो सकता है, एनी ट्रेपीजियम, एंड वन इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एंड इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम these two sides are equal in length because iso word is used for 2 equal sides. So in isosceles these 2 sides must equal. तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई इट मींस वन लाइन ऑफ सिमेट्री. If the heading is isosceles trapezium, it means these 2 sides are equal in length. So one line of symmetry is fixed. Fine. Then इस केस में आपने डायग्राम कैसा बनाना है? Like this. और यहां से one line of symmetry. Isosceles trapezium. So if the trapezium question is in exam ना, तो उसकी क्लासिफिकेशन करो कैसे? Like this. If the question in exam is draw the lines of symmetry in trapezium, तो divide this trapezium into 2 equal parts. Here you will write any trapezium, okay, and on another side you will write isosceles trapezium. Fine. Any trapezium, no need to draw, directly write down 0. 0 line of symmetry. 0 line of symmetry. But here you will draw like this and write down 1 line of symmetry. Like this you will solve the sum. So 1 line of symmetry. 1 line of symmetry. Like this. ऐसे ही अगर आपको पेपर में वही जो हरमन बोल रहा था ट्राइंगल आ जाए, then you will divide the triangle into how many parts? Stand up, Sahibpreet. 3. In one part you will write scalene, in second part you will write isosceles, in third part you will write equilateral. ये नहीं कहना भी मैम आपने ट्राइंगल लिखा, नाम तो लिखा नहीं, मैंने आपको समझा दिया, खुद से क्लासिफाई करोगे, कुछ भी आ सकता है बेटा पेपर में. ओके, सो क्लासिफिकेशन करो क्योंकि हमारे पास कंडीशंस है, हमारे पास फर्दर इसकी. ट्रेपीजियम में कोई भी ट्रेपीजियम इन एनी शेप और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अलजेब्रा अगेन. If the question is, Mitalti, listen first. If the question is solve and check that other values do not satisfy the equation. Check that other values do not satisfy the equation. तो आपने होमवर्क में भी यही किया, जो आंसर सॉल्यूशन है वो फाइंड किया, रिमेनिंग वैल्यूज पुट ही नहीं की. वहां पे हेडिंग में लिखा हुआ है. हाँ, यस कार्तिक, अनम्यूट योरसेल्फ. यस यस मैम. मैम जो अलजेब्रा वाला चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 11.3 है ना मैम, उसका जो 6th क्वेश्चन है उसमें ना मेरे को एक डाउट है एक लाइन में. बोलो. क्वेश्चन मुझे समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है, पर ना उसमें उन्होंने लिखा है यूज नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन. मैम इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा. मींस अगर प्लस यूज करना है तो प्लस ही यूज करना है, माइनस यूज करना है तो माइनस ही यूज करना है, ऐसे नहीं यूज करना. 4 + 9 - 3 ये आपने 2 ऑपरेशन यूज कर लिया. मतलब 1 ऑपरेशन, मतलब हमने एक एक्सप्रेशन में एक ही ऑपरेशन करना है. हाँ, अगर प्लस करना है तो प्लस ही करना है. और वो जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला है ना, आप एसोसिएटिव वाले की बात कर रहे हो ना, जो लास्ट. मैम यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4 यूज नॉट देन मोर 1 नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t in it. ये लाइक दिस
वन ऑपरेशन मीन्स अगर 3 है, Z 9 4, ये यस ये Z प्लस 9 प्लस 4, हाँ अगर प्लस है तो प्लस ही दिखाना है सभी में, ओके माइनस नहीं दिखाओगे, फाइन। एंड मैम जिसमें लिखा है कि यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, उसमें हम दो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, ओके। Now the question is, write down q divided by 2 is equal to 16 and values are 0, 32, 7, 5. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, 2 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 32 रिजल्ट, चलो फिनिश। Check the heading. What is the heading? The heading is solve this, okay, and also check that other values do not satisfy the equation. It means you will not solve your sum directly by shifting. How many values are given to you? Make 4 boxes, 1 2 3 4, हाँ जी मैं वही तो बोल रही हूँ, वही तो कह रही हूँ, चेक दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, सारी करनी है पुट, यही तो मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ी ना ऐसे, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये 32 फर्स्ट पे है, रिजल्ट आ गया, चलो आगे कर ही नहीं रहे, अपनी हेडिंग भी तो देखो, आपकी हेडिंग में लिखा है चेक दैट अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाइड, इट मीन्स यू हैव टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू. Okay, so here you will write left hand side, okay, right left hand side, again left hand side, again left hand side, repeat, सब repeat लिखना है. मैं क्यों लिख रही हूँ, ज्योतिन stand up. Why I am writing here left hand side, left hand side, left hand side, left hand side, what is the reason? Stand up. बाहर पता नहीं क्या है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वर्ड क्यों मेंशन किया, व्हाट इज द रीजन? टेस्ट है आज, क्योंकि ये तो मेंशन हमें करना पड़ेगा, इसके बिना सम कैसे करेंगे? यस मिताली, मैंने राइट हैंड साइड क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लिखा, व्हाट इज द रीजन? लेफ्ट हैंड, आपको लेफ्ट राइट ही नहीं पता अभी तक, यू आर इन 6th क्लास. यस, व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड हियर? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट्स राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. मैंने ऐसे ही सम करवाया हुआ है, जैसे मैं आज करा रही हूं ना, ऐसे ही करवाया मैंने पहले भी, बिकॉज वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, Q is variable and variable on the left hand side. Adgun, incorrect. Q is variable and variable on the left hand side. That's why I am writing here left, क्योंकि मैंने variable से ही start करना है. अगर हमने सम सॉल्व करना है तो हम स्टार्ट किसके साथ करेंगे? वेरिएबल के साथ. वेरिएबल कौन सी साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा है. सो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हमारी? Q/2 लिखो, Q/2, फिर Q/2, इधर भी रिपीट होंगे सारे स्टेप्स, Q/2. नाउ पुट द वैल्यूज 1 by 1. Q के लिए फर्स्ट वैल्यू क्या है? 32. सो राइट हियर 32/2. Q के लिए सेकंड वैल्यू क्या है? 0. 0/2. Q के लिए थर्ड वैल्यू क्या है? 7. 7/2. Q के लिए नेक्स्ट वैल्यू 5/2. सिराउंड सब रिपीट हो रहा है.
4 वैल्यूज है, अगर 5 वैल्यूज होती तो यहाँ पे आप कितने कॉलम बनाते? 5। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिखा? बिकॉज वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ पुट द दिस इज 16 0 3.5 2.5 wrong correct, and here you will write equal to right hand side. Then in the end you have to write result, very much compulsory to write result. रिजल्ट किसने दिया आपको? 32 ने। ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट का मतलब है आपको 16 कहां से मिला? 32 से। So in the result you will write q is equal to 32. Like this you will solve the sum. और अलजेब्रा में यही तो इम्पोर्टेंट है, और तो कुछ है ही नहीं। I mean to say that जो इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। Yes, दृष्टि, unmute yourself. मैम मैंने आंसर देने के लिए किया था। ओके 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 फाइन। तो ऐसे करना है आपने। अगर हमारा वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते? राइट हैंड साइड। Solve the sum. We will start with the variable on the left hand side. So that's why I am writing here left hand side, left hand side, left hand side. Note down one more question. ग्राफ पेपर है ना सभी के पास? मैंने कितनी बार मैसेज किया था, कल भी रिमाइंडर लिखा था। हाँ, वो तो मैसेज ही नहीं मेरे देखता, लेके कहां से आएगा? ये बहुत 0 मार्क्स मिलेगा उसमें। 4 मार्क्स का सम है। अब स्केल से अपनी कॉपी पे बनाना टेस्ट के टाइम पे। और स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टेस्ट at the top write down your name, roll number, class, each and every information. नहीं, नेम, क्लास, रोल नंबर। ओके, मैंने पेपर चेक करके रिटर्न ही नहीं करना। वी आर नॉट फ्री। भी मैं एक एक को ग्रुप में टेस्ट भेज भेज के पूछती रहूं ये किसका पेपर है, किसका पेपर है। मैं क्या कह रही हूं? क्या कह रही हूं मैं? क्या कह रही हूं? तो यही तो कह रही हूं मैं उनको भी, मैंने चेक करके भेजने हैं तो नाम लिखना, तभी मुझे पता लगा तू सो रहा है आज। पहले भी यस यस ऐसे करना है, ऐसे करना है, बाद में मुझे कह रहे 32 पे रुक जाए मैम। नाउ सॉल्व m minus 4 is equal to 10 and also check that other values do not satisfy the equation. Start solving. Yes, start solving this sum. What is the first step? Yes, Drishti, unmute yourself. Yes, ma'am. What is the first step? Ma'am, we have to make 4 boxes and then write left hand side in each box. Yes, column. Okay, first column, Yes. second column, third column. कॉलम के बिना भी कर सकते हो, बट ये ना इजी रहता है। अगर आप कॉलम में करते हो ना इजी रहेगा। और जरूरी नहीं कॉलम एक पेज पे ही बनाने हैं, अगर स्पेस खत्म हो गई है तो रिमेनिंग 2 कॉलम नीचे बना लो। ओके, सो राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अगेन लेफ्ट हैंड साइड। दृष्टि, व्हाई वी आर राइटिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? Ma'am, because variable is on the left hand side. Very good, because the variable is on the left hand side. ये वही क्या है? वही तो कह रही, ये क्या है? मैं वही तो कह रही हूँ, ये गलत है मेथड। आपने हर एक वैल्यू करके दिखानी है। किसका आधा नंबर मिलना है तुझे? आधा।
चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये है सॉल्व। मैं वही तो उसको बार बार बोल रही थी, सबको बोल रही हूँ, क्वेश्चन तो सुनो क्या है। ये सिंपल मेथड है सॉल्व, ये 1 या 2 नंबर में आता है ऐसे। हमारा क्वेश्चन है चेक दैट अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाइड, यही करना है। थ्री में आ सकता है या 4 में, हाँ ये 1 या 2 मार्क्स में नहीं आता। जैसे आप कर रहे हो वो तो आधे नंबर का सम है आपका। सो राइट हियर m minus 4, m minus 4, m minus 4, m minus 4. The heading is check that other values do not satisfy the equation. The heading is not be solve this. हाँ अगर होता 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में सॉल्व, आपने क्या करना था, 4 को इधर क्या कर देना था, शिफ्ट, खत्म काम। पर आपकी हेडिंग ही कुछ और है। आपके क्वेश्चन की हेडिंग है चेक दैट अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ओके, सो यू हैव टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू। m की फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, सो राइट हियर 10 minus 4। m की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4, 4 minus 4। m की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0 minus 4। m की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 14 minus 4। So 10 minus 4, you will get 6. 0. Yes, what about this, Arman? Very good. Minus 4. When 0 is added and subtracted from anything, you will get the same number. 0 minus है, 0 तो कुछ होता ही नहीं, minus 4. Your basic concepts are very weak. Next is 10. So, incorrect, 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 correct is equal to right hand side. This is equal to right hand side. Okay? Yes. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तूने कॉलम की जगह ऐसे नीचे नीचे कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉलम बनाने कंपलसरी नहीं है, मैं तो कॉलम में इसलिए समझाती हूँ भी मिस्टेक नहीं होती। आपने कॉलम के प्लेस पे ऐसे डाउन डाउन लिखना है, वो भी सही है। स्टॉप टॉकिंग, कल से इकट्ठे नहीं बैठोगे दोनों, फर्स्ट पीरियड वाले टीचर को बोल देना। कंटिन्यूअसली टॉकिंग। आपने उसकी बात को लेके चलना है, आप अपना रिप्लाई करो। तो डाउट आप मेरे से क्लियर करो, आप उसके पीछे लग के गलत आंसर दे रहे हो। टीचर क्यों है यहाँ पे, टीचर से क्लियर करो अपना डाउट। उससे क्यों कर रहा है, उसको बेटर तो नहीं आ रहा होगा मेरे से कि बेटर आता है, तो फिर आपको कोई भी डाउट है मेरे साथ क्लियर करो। ओके, सो इन द रिजल्ट, इन द एंड, इन द रिजल्ट यू विल राइट व्हाट इज द रिजल्ट, टेल मी। m is equal to 14. So this is the result. In the result you will write m is equal to 14. So like this we will solve the sum. Write down one more question. Now tell me, if graph is like this, then tell me what is the scale in this graph? One unit is equal to, ये नहीं पता क्या 15, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे देन यू विल राइट 15. ओके, सो इन ग्राफ वेरी मच कंपल्सरी टू राइट ओरिजिन, एरो विद एक्स एक्सिस, एरो विद वाई एक्सिस एंड स्केल. Scale is compulsory. Okay,
So in scale, you will write 1 unit. Yes, Drishti beta, raise your hand. Yes, Drishti. यस मैम। मैम एक्सरसाइज 11.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट। कौन सा वाला क्वेश्चन बोलो? मैम फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 and 7। हाँ तो 2 प्लस उसके बहुत सारे आने हैं, आपने 4 to 5 लिख देने हैं। ओके, उसके बाद आपने वहां लिख देना है सो ऑन, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं। मैम यहाँ पे लिखे यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन। हाँ, 2 नंबर ऑपरेशन मींस y plus 2 7 plus y लाइक दिस, जैसे जो कार्तिक पूछ रहा था मेरे से। मैम हमने बस 2 ही ऑपरेशन यूज करने, या प्लस या माइनस या डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो मर्जी करो, मल्टीप्लाई के साथ प्लस कर लो, मल्टीप्लाई के साथ माइनस कर लो, पर 2 नंबर ऑपरेशन यूज करने हैं। ओके यस मैम, ओके।